हाय एवरीवन, आज फिर मैं विभा दीपिका के साथ और आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है इमोशंस की सीरीज में और ये है जॉय एंड हैप्पीनेस। सो दीपिका, ऑल हैप्पीनेस? Extremely happy. So that this video now opens up many more things for you, wishing all happiness to you, and in that journey we find what exactly is happiness और उसको हमने कैसे पाना है और कैसे महसूस करना है ना दीपिका? Yes, how to decode and redefine our happiness within. Yes, the most sought after purpose of our life is happiness. Definitely. I think all our viewers will agree that they all want to stay happy all life long, right? So we'll try and decode Yes. how to really create that for oneself. And Yeah. let's see. And let's see. So, दीपिका, जब हमने पिछले वीडियोस किए जहाँ हमने फियर की बात की, जहाँ हमने सैडनेस, डिप्रेशन की बात हुई, एंगर की बात की और डिस्गस्ट और हेट्रेड की हुई, और हमने ये महसूस किया कि सैडनेस और हैप्पीनेस रहते हैं लेकिन बाकी सारे इमोशंस टेम्पररी हो सकते हैं. सो एज ऑलवेज दीपिका हैज कम अप with her poem on happiness. I would love to listen to that, Deepika. Thank you, Vibha. Yes, I've tried writing something for happiness. Hope you all connect to it. I'll just read it out for all our lovely people out there. Yeah. Sow oneself, reap happiness. Happiness is not something to search. It's in you, your inner urge. Being happy is not just a choice. It's tapping and trusting your own voice. Wow. It's in your belief, your willpower, even when you sigh. Spilling the radiance of the rising sun at the wink of your eye. It knocks not only when you achieve your desires, it's the soothing silence of the heart to take you higher and higher. Wow. So let's paint it in all what we have, from scratch to sky. Let your soul pledge to get up once more before you feel to die. Wow. Today we will carve it out of us. Let's add all our minus for a life's new reigning plus. Wow. So amazing. Yes, I So- tried writing that. So this is happiness and I think दीपिका, इतनी प्यारी तरह से आपने इस चीज़ को डाला है कि it's a hope, it's a wish, it's a purpose, I think, and it's so internal. जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो एक प्रश्न आता है कि क्या हमें वो बाह्य रूप से मिलेगी चीज़ों से या हमें अपने आप से ही अपने अंदर ही पाई जाएगी. सो दीपिका, जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हमें क्यों लगता है कि उसे पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है या हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि हर कोई ये बोलता है कि ये इंटरनल है. तो ये आखिर ये कंफ्यूजन या ये बिलीफ या ये क्या है, क्या आखिर? I would say yes, because people get lost because they don't understand that happiness is not just a choice but working on the choice as well. Sometimes we choose things but we don't work towards them. So the happiness is never sustained. आप क्या चुनते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उस चुनाव के बाद उसे कैसे बुनते हैं ज़िंदगी में. एंड दैट इज़ हैप्पीनेस. It's not depending on others, but it is knowing your own self deep down. Self-work is happiness. Others' work is others' work. It will always be theirs. How many of us choose to work on ourselves time and again every day? That is what is the source of happiness. बट ये थ्योरी है. ये आजकल तो कोर्सेज भी बहुत हैं, हैप्पीनेस कोचेस बन रहे हैं, जब से कोचेस कई तरह की कोचिंग हो रही है और हैप्पीनेस कोच भी है. लेकिन मुझे ये पूछना है कि हमें क्यों नहीं सिखाया जाता कि हैप्पीनेस क्या है, या
हम कहीं वो मिस आउट कर जाते हैं, या हम उसे कहीं और ढूंढने लगते हैं, या हम दूसरों की नज़रों में देखने लगते हैं कि हाँ मैंने ये चूज़ किया क्योंकि मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, या मेरे घर वाले खुश होंगे, या या मेरे कोई भी दूसरा दोस्त की खुशी के लिए है। क्या ये हमेशा बाहर लोगों के में हम पाए जाते हैं? ओके, एक मिनट। ये ऐसा क्यों होता है दीपिका कि जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम निर्भर करते हैं बाहर के लोगों में कि मुझे ये काम करना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, मुझे ये पढ़ाई करनी है क्योंकि उनकी खुशी के लिए है, आपकी खुशी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। हम ये हमारे समाज में, स्पेशली हमारे कल्चर में, ये हमेशा दूसरों की खुशी के लिए करना ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और एक वो त्याग की एक फीलिंग रखना कि मैंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को दूसरों की खुशी के लिए, ये हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रहा। तो कहाँ हम मिस आउट कर गए हैं इस चीज़ को? I think the right balance of growing and giving is happiness. What you grow inside to stay happy, and how much you give to others to sustain happiness or to spread happiness. That's the balance is called happiness within. जैसे आपने कहा त्याग की भावना, ठीक है, लोगों के लिए त्याग करना, अपनों की खुशी के लिए कुछ करना हैप्पीनेस हो सकती है, लेकिन वो एक मोमेंट्री हैप्पीनेस होगी। आपने अपनी मम्मी पापा की चॉइस के सब्जेक्ट की पढ़ाई करके उन्हें उस टाइम तो खुश कर दिया, लेकिन अगर आप उस चॉइस को करियर, पैशन और मॉनेटरी गेन और सक्सेस में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो वो हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी आप तक, पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो पूर्ण अंदर से होती है। कोई भी चीज़ जब तक अंदर से ठोस ना हो वो पूरी नहीं होती। सो वो जब वो रियलाइजेशन है कि हैप्पीनेस और प्लेजर में जो एक डिफरेंस होता है, ठीक है, आपको बाहर की चीज़ों में, बाह्य चीज़ों में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको खुशी मिल जाती है, बट वो जो बच्चे की खुशी होती है, जब उसको खिलौना मिला तो खुश हो गया, उससे छीन लिया तो दुखी हो गया, गुस्सा हो गया, और फिर वो खुश हो गया, माँ के पास आया तब खुश हो गया, वो जो एक बिल्कुल किसी चीज़ पे निर्भर ना होना और वो महसूस करना और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में आ जाना, आपकी आंखों में आ जाना, आपके सोच में आ जाना, वो शायद इंटरनल हैप्पीनेस है, इनर हैप्पीनेस को जानने की चीज़ है, देन कि बाहर के प्लेजर्स पे डिपेंड करना। यस डेफिनेटली, बिकॉज बाहर का कोई भी प्लेजर, कोई भी रिश्ता, कोई भी स्टैंड आपके लिए थोड़ी देर की हैप्पीनेस होगा या एक हैप्पीनेस की वजह होगा, वो पूरी हैप्पीनेस नहीं होगा। और फिर वो चीज़ जब पूरी तरह से मिल जाती है, फिर आप दूसरी एक खोज पे निकल पड़ते हैं। True, so true. That's लेकिन why I just remember Dr. Martin Seligman's words and the difference he created about a pleasurable life, a good life, and a meaningful life. If we understand the difference and the dynamics and ingredients for all three, the life is sorted with happiness. tell me more about this. Yes. So when we talk of pleasurable life, we talk of what just Vibha stated about materialistic desires that we have and how we sustain those desires one after the other to stay happy. That's pleasurable life for us. Whatever gives us materialistic pleasures, it could be a person, it could be things that we buy for ourselves, the shoppings and everything. That can be a materialistic happiness, pleasure life, right? But a good life, as a little contrast to it, would be value driven. What your values, what your beliefs are inside you, that do you feel in sync with them or not? It's extremely important to identify your own values. I'm not talking about the societal values. I'm not talking about the societal boundaries. I'm not talking of what is taught in schools only, but what life teaches you. I'm talking about that, and I want people to think about that. What is the good life? What are the activities that make you feel good? Some activities will make you feel pleasurable. Some activities, it could be exercising, right? They will make you feel good because it's coming from the inside again. It's value driven, your value for your own body, your own fitness. That's a good value to have, and that will definitely reflect in happiness. Third category comes back to meaningful life. When we talk of meaningful life, we usually do not go deep into it.
because probably we all have time constraints and value constraints and social constraints. But meaningful life is either purpose driven or purpose drives you. One of the two. But it will always be more meaningful when you know the purpose. If you don't know it, create it and follow it. Every small step. Because I think Vibha is the right person to tell us about how a purpose drives you and how a purpose driven life gives you innate happiness to sustain it all life. Right, Vibha? I cannot have a better person on this. I have realized over the time that हमें हमेशा बताया जाता है, एक फोकस एक हमें दिखाया जाता है कि आपको ये करना है और इस तरह से करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेनिंग है, वी आर लिविंग इन दिस डिसिप्लिन लाइफ एंड यू नो लाइक अ स्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज, सो वी फील कि डूज एंड डोंट्स हैं और इधर पहुंचना है. बट समटाइम्स व्हेन यू गो यू इंटरनलाइज एंड यू फील दैट the purpose starts driving you and you feel things start opening up so beautifully, because it's in the awareness and in understanding, and that's where the happiness ultimately resides. That's a corner जहाँ पे happiness आके वो रहती है, वो समझती है. जब हम believe करना, जैसे आपने कहा, जो हमारे beliefs बने हैं, और बट वहाँ पे हैप्पीनेस हमारी हैबिट बन जाती है. हम अडेप्ट करने लगते हैं नए से नई चीज़ों से, क्योंकि समाज हमेशा बदलेगा. कल्चरली आप उधर होंगे, लेकिन अब जैसे कोविड आ गया, तो हम किस तरह से कितनी जल्दी उसमें अडेप्ट होते हैं चेंजिंग टाइम में या चेंजिंग सिचुएशन में, और स्टिल होल्डिंग आवर वैल्यूज़. एंड दैट्स समथिंग विच शोज दैट you are driven with the purpose to be happy. You know, that drives you now. But you have to be clear what exactly, where you're coming from. Right. So, if you're coming from a state of anger, then anger drives you, right? Right. If you're coming from state of, greed, then greed drives you, right? So, similarly, I feel if you're coming from that contentment of inner peace, of that balance, कि हमारे अंदर हम उस बैलेंस को समझ गए हैं, then that वो जो सेटलमेंट होती है, वो जो कहते हैं ना कि वो शांति, then that becomes the main source and anchoring to drive you, because you have understood in living in sync with natural environment and yourself in it. So then the happiness drives you. We can say out of this entire great conversation that a roadmap to happiness is very simple. It just has 3 ingredients: habits, beliefs, adaptability. Yeah. Right? Yeah. Because your habits have 60% of your daily life happiness to it. Your beliefs, as Vibha said, what you believe becomes your drive, becomes your passion, and drives you all life long. Anger, greed, happiness is your choice. And adaptability, like she just mentioned about the COVID times and before, how adaptable we've been maintaining our happiness quotient in our life and around is what happiness is. Yeah, surely. It's like in sync with that, क्योंकि emotions तो हैं और आएंगे और जाएंगे, और ज़िंदगी में ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर होगी जो थोड़ा सा हिलेगा, बैलेंस हिलेगा. लेकिन वो एक जो अंदरूनी खुशी है या अंदरूनी स्ट्रेंथ है, वो आपको हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प कर देती है. लेकिन अब क्योंकि ये नई चीज़ आई है हैप्पीनेस कोच, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये नीड उठी कि हम ये सिखाएं कि हैप्पीनेस क्या है. बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं ज़िंदगी की भागदौड़ में लोग अपनी हैप्पीनेस ढूंढना भूल जाते हैं. वो कहाँ से मिलती थी उस सोच को भूल जाते हैं, और जबकि वो अंदर है. Exactly. वो अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर है, लेकिन वो है अंदर. Right. Because happiness coaches or habits and happiness practitioner is also a coach that tells you that probably guides you to a path to find your happiness in simple things that you miss out. That's what a coach आइडेंटिफाई tells you. करना, वो Right. आइडेंटिफाई करना जगह जहाँ पे वो है,
एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी मैंने दीपिका सुनी थी रेडियो में कि एक दिन एक आदमी खुशी की इंतज़ार कर रहा है और खटखटाहट होती है और वो खोलता है तो देखता है एक छोटी सी खुशी है। तो वो कहती मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो कहता है नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी चाहिए। तो चली जाती है। फिर थोड़े महीनों बाद फिर एक खटखटाहट होती है, वो फिर दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि वो छोटी सी खुशी है। कहता है नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी चाहिए। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है। थोड़े दिनों बाद उसे दिखता है कि उसको सुनाई देता है कि पड़ोस में बहुत धम 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 आवाज़ आई है और दरवाज़ा खटखटाया है। और वो बाहर जाके देखता है तो एक बड़ी सी खुशी पड़ोसी के घर में खटखटा रही है दरवाज़ा। तो वो कहते हैं अरे तुम वहाँ कहाँ हो, मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रहा था, तुम मेरे पास आओ। तो वो खुशी कहती है मैं तुम्हारे पास हर पल आई, हर बार आई, पर तुमने नहीं खोला। इसने हर बार जब मैं छोटी थी तब भी खोला, तो आज मैं बड़ी खुशी के रूप में इसी के पास दरवाज़ा खटखटाने आई, क्योंकि इसने मुझे जब मैं छोटी थी ना तब भी मुझे गले लगाया और मुझे वेलकम किया था। तो वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, How beautiful it is. तो हम उसे मिस आउट कर जाते हैं एक बड़ी सोच, एक बड़ी बिल्कुल। इंतज़ार में। वो जो रोज़मर्रा में जो खुशी मिलती है उसको शायद हम कहीं भूल जाते हैं, है ना? सो वो एक्सपेक्टेशंस में, दूसरों की नज़रों में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम अपने आप को कहीं खो देते हैं। एक और चीज में, अपने रोल्स क्रिएट करने में और दूसरों के दिए रोल्स एक्सेप्ट करने में, वहाँ उस बीच में भी वो हैप्पीनेस खो जाती है। हम अपने लिए अपने रोल्स क्रिएट ही नहीं करते हैं, जो लोग हमें रोल असाइन करते हैं हम उसी में अपने हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं। आप किसी के लिए बेटे हैं, बेटी हैं, बहू हैं, इतना बॉस कुछ है, एम्प्लॉय टीचर हैं, है, राइट, इतना कुछ है, लेकिन आप खुद के लिए क्या है? एक और चीज़ है कि जो तुम्हें मिल जाए, अब तुम्हें ये मिल गया, अब उसमें कैसे आप अडेप्ट करते हैं, वो भी Exactly. है ना। सो वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैंने कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी, इनफैक्ट मुझे गिफ्ट मिली थी दीपिका, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दलाई लामा। और इतनी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है, उनसे इंटरव्यू हो रही है और बातचीत हो रही है, और वो इतनी खूबसूरती से वो एक एक पहलू को बोलते हैं और उसको समझाते हैं कि अल्टीमेटली वो खुशी है क्या। और फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग नहीं, ओके, और फिर हाँ, और फिर ये भी रियलाइज़ किया कि किस तरह से हम भूल जाते हैं कि खुशी हमारा हक है। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, वैसे राइट टू हैप्पीनेस है, क्योंकि सबका पर्पस हैप्पीनेस है। तो वो जो हमारा जो हक है वो हम कहाँ भूल जाते हैं। तो मैं एक और कहीं पर मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी था कि हमारी कुछ ह्यूमन नीड्स होती हैं। सो हम क्रिएट करना पसंद करते हैं, हमें सिग्निफिकेंस चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए, इमोशनल कनेक्ट होना पसंद है, हमें ग्रोथ पसंद है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये हमारी ह्यूमन नीड है कि हम कैसे आज से बेहतर कैसे हों, हम कुछ क्रिएट करें तो वो हमारी एक खुशी में आता है कि हम कैसे नई चीज़ को क्रिएट करें, हम एक नई सोच को करें, हम नयापन कैसे लाएं, और हम कैसे कनेक्ट हों, और हमें इम्पोर्टेंस चाहिए। और ऑल्सो दैट कि वो एक जो है उसको भी एक्सेप्ट करते हुए हमें उससे भी कनेक्शन चाहिए, राइट। हमें कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल सिर्फ दूसरों पे नहीं, हमें अपने पे जो कंट्रोल में हमें जो नीड है हमारी, सबसे पहले खुद की ही कंट्रोल की नीड है हैप्पीनेस के लिए। So ओनली फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज योरसेल्फ एंड योर सेल्फ कंट्रोल डायनामिक्स. Other people are not supposed to be controlled. They're just supposed to be known and loved. That's all. and also yeah, it's so beautiful. And then that certainty, that we feel secured about it and that we are protected. तो ये कुछ ह्यूमन नीड्स हैं जो हमें शायद जिस वक्त ये समझ आ जाती है और ये हर पहलू में कुछ ना कुछ परसेंटेज में होने लगती है, तो हम उस खुशी की तरफ, अपनी अंदरूनी खुशी को पहचानने लगते हैं। सो ये हक मांगना, और उसको फिर हम सोर्स कि हमें वो आखिर वो इनर वर्थ, हमारा वर्थ क्या है,
हमारी हम अपने आप को अपनी नज़रों में कैसे देखते हैं, तो ये भी एक खुशी का कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हैप्पीनेस। बिल्कुल, मैंने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी जो मुझे आज भी हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में याद है कि नज़रें बाहर नहीं होती, सिर्फ नज़रें वो होती हैं जो आपको आपकी आत्मा की गहराई तक ले जाए। नज़रें अंदर ज़्यादा हैं और बाहर तो दुनिया दिखती है इन नज़रों को, लेकिन वो नज़र लाओ जो खुद से खुद को जोड़े और तुम्हें खुद से खुदा तक ले जाए। वाह, तभी शायद हर कोई आजकल कहता है कि उस खुशी को पाने के लिए वो मेडिटेशन और आंख बंद करके वो शांति और माइंडफुलनेस, उसे पूरी तरह से जीना। सो वो मेडिटेट करते हुए आप अपनी जो आंख बंद करती है तो आप अंदर की तरफ देखने लगते हैं, Exactly. अपने आप को देखने का। और माइंडफुलनेस जब आंख खुले तो उस पलों को जीने का, वो जो नाव में जो खुशी है और जिस तरह से हम उस चीज़ को जीते हैं, उस पलों को, शायद वो भी खुशी को बयान करती है। Very simply, I would like to tell the audience that the art of living in the moment is mindfulness, and the art of knowing your own inner strength and potential is meditation. There's nothing beyond it that you need to go with it. You have to get into so many definitions for it. बट आर्ट एंड स्किल की जब बात आई तो ट्रेनिंग ऑफ माइंड की ज़रूरत है, क्योंकि पता ही नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं है तो फिर कोई तो बताएगा। बिल्कुल। जैसे लिटरेसी है, चाहे क ख ग सीखा, ABCD सीखा, किसी ने बताया, राइट। जिस दिन क ख ग सीख लिया तो सब कुछ आ गए, ग्रंथ आ गए। ABCD सीख लिया तो एनसाइक्लोपीडिया आ गए, तो सब एजुकेटेड हो गए। तो माध्यम है ना आप जैसे हैप्पीनेस कोच। नहीं, वो तो आप ही है। बट द फैक्ट इज दैट कि उस ट्रेनिंग की जो हमें ज़रूरत है, और डिसिप्लिन ऑफ माइंड और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होना। एक्सेप्टेंस। ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे। आप, मैं, हमारी ऑडियंस, कितने लोग खुद को एज इट इज एक्सेप्ट कर पाते हैं? ये मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। कितने लोगों को तब गुस्सा नहीं आता जब आपकी शॉर्टकमिंग कोई दूसरा इंसान आपको कहे? आता है, क्योंकि वो खुद को ही देखने में वक्त लगता है। इफ आई नो आई हैव अ शॉर्टकमिंग, somebody else telling me the same will not make me angry. I'll be more happy and satisfied that I know what I am. How many of us know what we are? एक्चुअली और वो गहराइयों तक तो हम पहुंचते ही नहीं हैं। वो एक जोहारी विंडोज़ है जो आपके साइकोलॉजिकल एक वो गेम है और एक एक्सरसाइज है, उसमें ये है कि भाई एक ऐसा स्पॉट आता है जहाँ ना खुद को पता होता है ना दूसरों को पता होता है। तो वो एक इवेंट, वो एक सिचुएशन शायद ऐसे तुम्हारे अंदर का कैरेक्टरिस्टिक लाता है कि तुम कहते हो ओह वाह, ये भी था मेरे में। Right. सो वही एक चीज़ है जो खुशी है कि क्या ये भी है कि मैं खुद में हूँ, लेकिन मुझसे जो छू जाए वो भी अपने आप को पहचान ले, है ना। सो वो एक मुझे बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं बातचीत होती है क्लाइंट से तो वो कहते हैं ओके फाइन, क्योंकि हर चीज़ नेगोशिएशन है आजकल, हर चीज़ ओके आप कितनी अच्छी तरह सेल कर सकते हैं, अपना क्या दाम लगाते हैं अपनी चीज़ का, अपने प्रोडक्ट का। तो और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट ओनली दैट कि आपने अपना उसका दाम क्या लगाया, बट ये है कि उस चीज़ उस लर्निंग के दौरान आप क्या बन रहे हैं। इट्स नॉट ओनली दैट कि आप परफॉर्म करके अपनी खुशी पा रहे हैं, बट व्हाट आर यू बिकमिंग while you're performing in that situation that defines your internal happiness. Definitely. You know what you're becoming, what are you choosing to become, that's what matters. और वहाँ पे आपके attitude आ जाता है। Yes, and it's a journey towards your own self. We take up so many journeys in so many relationships in life. Let's have a journey towards inside of us. Let's go on that journey. Why to fear that अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वेरी ट्रू। खुद के लिए भी तजुर्बा बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं। तो हमने पूरा प्लान किया कि हमने क्योंकि हैप्पीनेस का हमने बनाना है और ये हमारा लास्ट वीडियो है उस इमोशन के सीरीज़ में, तो हमने सोचा कि हमने कलरफुल साड़ीज़ पहननी है और हमने पूरा खुशी से, मतलब उस तरह से एटीट्यूड से हमने ये वीडियो करना है जहाँ पे हम ये महसूस करें कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारी ही बॉडी लैंग्वेज से ये दर्शाना चाहिए कि
हम इस चीज़ को शायद सबसे बांटना चाहते हैं। और ये जो हमने महसूस किया है इस सीरीज़ के दौरान, और हमारी लर्निंग रही कि वो सैडनेस और डिप्रेशन क्या है, वो एंगर क्या है, वो फियर क्या है, क्योंकि हमें लोगों ने कांटेक्ट किया और हमें पूछा, हमसे कई बातें हुई, और ये भी हुआ कि आखिर अल्टीमेट क्या है। सो हमने कहा उसकी इंतज़ार करो जो लास्ट वीडियो होगा। तो हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमने महसूस किया कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, वो भी खुशी बयान करती है कि बिल्कुल हाउ वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, हाउ वी आर परसीविंग इट, राइट, हाउ वी रिसीव इट। जब वो दरवाज़ा खटखटाए तो हमने क्या अपनी हैबिट की वजह से उसे बंद तो नहीं किया, राइट, एंड देन हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा एम और गोल क्या है, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, and rightly as Vibha said, today we wanted to dress happy, reflect happy, and create a long-lasting happiness for each one of you listening to us. Because you've given us all a lot of love and Yes, lot of yes. appreciation for all our videos on this series of emotions. Yeah, and that's where we want to talk कि भाई वो आखिर वो चीज़ें हैं क्या। सो एक हमने कहा माइंडफुलनेस, उस नाव में रहना, उसको ऑब्जर्व करना, बिल्कुल। राइट, और अपने चेंजेस अपने देखना, बिल्कुल। ये है। Second would be the gratitude life with the habit of giving. Yeah. Are you in the habit of thanking what you have and giving what the other needs? Yeah, or yourself Yes. receiving and giving in the balance. Right. Right. Very true. Yeah, and then affirmations. Yes. Affirmations. What are your की- affirmations about your own self-worth? Yeah, that is what it is, and how you want to take your life. और उसके बाद reclaiming your happiness. True. Your happiness. किसी का छीन के नहीं हैप्पी होना। आपने जो अपनी हैप्पीनेस शायद किसी भी वजह से, कभी किसी उम्र में किसी के शब्दों की वजह से या किसी के एक्शन की वजह से कहीं खो गई हो, उसको वापस रिक्लेम करना और अपने आप को पूर्ण महसूस कराना, होल एंड कंप्लीट इंटीग्रेटेड योरसेल्फ। So true. या सो Yes. यू, क्योंकि हम फॉल आउट हो जाते हैं, किसी ने कहा हम हर्ट हो जाते हैं, जो होगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और कहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जब चाहे आप अपने आप से पाए, शायद नहीं पता, तो किसी की मदद लेना और खुल के मदद लेना और मांगना कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, आस्किंग फॉर हेल्प, राइट, एंड दैट्स वेयर वी फील दैट reclaim it, get the help so that you bring back what you had lost, which you are supposed to be। आपको एक नॉर्मली हमेशा एक खुशनुमा और हेल्दी होना, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल तरीका है ऑर्गेनिकली ग्रो होना, राइट। So it's a self-work project. Yeah. So get on a project or your own self-work. एंड सेल्फ वर्क विद रिस्पेक्टिंग ऑल, पूरे एनवायरनमेंट को सेंसिटिव होना। जब आपको अपनी खुशी प्यारी है तो दूसरे की भी खुशी का पूरा उसकी रिस्पेक्ट देना, तभी पूर्ण तरह से जो हम कंटेंटमेंट और खुशी की बात कर सकते हैं। Right, and happiness is not just creating a new you, but discovering the real you. Yeah, and transforming and putting your things back to yourself, and with lot of affirmations, right? And a simple affirmation for beginning your happiness journey today is I am worthy of all I have. Yes. And second, I will create from what all I need to. I am creating what Yes. all is need to fulfill myself, my soul, and I am ready to change for the best, for the betterment, because that's what the best of the affirmations are. Yes, and because these affirmations strengthen your inner power, your inner voice and energy to achieve more and strike that balance pretty well. वैसे बैलेंस हिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो हिलेगा नहीं तो उसके बैलेंस होने का फ़ायदा हमें समझ ही नहीं। हाँ, जब हिल जाता है, Right. लेकिन एक ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस हिले। ये भी ज़रूरी नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं दुख बहुत ज़रूरी है सुख को जानने के लिए, नहीं। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है उसको कोई चीज़ पाने के लिए, नहीं। लेकिन अगर स्ट्रगल आ जाए तो उसको किस तरह से
लिया जाए और Success उसको सक्सेस में या उसका बैलेंस क्रिएट करने में वो ज़रूरी है। So true. दुख की ज़रूरत नहीं है सुख को पाने के लिए, लेकिन अगर किसी तरह से दुख आ जाए या दुखी हो जाए या ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, तो बैलेंस कैसे किया जाए वो ज़रूरी है। और वैल्यू करना, जो चीज़ है उसको सिर्फ इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं, उसे वैल्यू करने की है। और थैंकफुल, एज वी सेड, Right, थैंकफुल right. होना। सो ये हो गया। अगर अब मुझे बताओ दीपिका कि किसी ने आपकी खुशी छीन ली या जानबूझ के किसी ने प्ले अप करा, फिर मैं कैसे उसे रिक्लेम करूं? First and और जो foremost, मुझे लगे कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, तो उसमें मेरा कैसे होना चाहिए, मेरा क्या एक्शन या थॉट होनी चाहिए? पहली चीज डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है या वो इंसान आपके लिए कितना मायने रखता या है। जॉब? हाँ, जिस चीज ने ये हैप्पीनेस क्वोशंट को लेने की कोशिश की, आपसे दूर ले जाने की कोशिश की। सेकंड वुड बी क्रिएटिंग सर्टेन बाउंड्रीज फॉर यू। It's extremely important to understand that anybody and everybody in your life, even the closest of relationships you have, will have boundaries. वो तो है ही, जब हम अर्थ रियलिटी में आए हैं Exactly. तो बाउंड्रीज और स्पेस तो अपनी बनती ही है, वही है बहुत लोग चीज़ें। नहीं क्रिएट कर पाते हैं, इसलिए वो हैप्पीनेस उनके साथ रह नहीं पाती है। बिकॉज कोई भी आएगा हैप्पीनेस ले जाएगा। बिकॉज और कुछ ना कुछ आपको Right. मतलब ऐसा दे जाएगा शायद जो तुम्हें पसंद ना हो। एग्जैक्टली, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो रडार कितनी है, किसके लिए कहाँ एंटर होनी चाहिए। So creating Personally, professionally, so- yes, creating those boundaries, abiding by those boundaries, and if somebody is trying to take away your own reason of staying happy, tell that person. Mentally have that strength, get that inside you that hey, this is my happiness. You cannot take it. Have that claim on your own self, ownership of yourself. आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी होने से पहले आपके लिए अहमियत रखती है। और जो चीज़ अहमियत रखती है हम उसके लिए हमेशा फाइट करते हैं। अगर आप अपने घर के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने रिश्तों के लिए फाइट करते हैं, तो एक छोटी सी खुशी जो आपके अंदर हमेशा ज़िंदा रहना चाहती है, उसकी फाइट भी बनती है। सो ओनरशिप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस तरह से हम अपनी चीज़ को बचा रहे हैं तो दूसरे की बाउंड्री की भी कदर की जाए। बिल्कुल, you don't have to enter somebody else's space till you are invited. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको इफ़ेक्ट हो जाए कि दूसरा आपको क्या बोल रहा है, दूसरे के शब्द। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। सो आप जो अपने आप को बोल रहे हो वो आपको बनाता है और आपको कहीं पे निचोड़ता है, वो आपको मैनूवर करता है, कहीं घड़ा आप खुद बनाते हैं, दूसरे सर्कमस्टांसेस भी बनाते हैं, एनवायरनमेंट भी बनाते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है देन कि दूसरा क्या आपको बोल रहा है। सो वो भी एक हैप्पीनेस का कहीं ना कहीं वो हो सकता है, एक नज़रिया। बिल्कुल हो सकता है। इट इज़ रीजन ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज एट टाइम्स वी फॉरगेट दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट एक्सटर्नल इवेंट्स हैव ऑन अस और वी हैव ऑन आवर ओन सेल्फ। That's the degree of control that actually governs our happiness. If I feel I am in control of my own self, I am in sync with my values and purpose in life, I'll always stay happy. Come what may. People can come and probably try and irk, but they cannot try and disrupt my reasons of staying happy. That's your degree of control on your own self. And that's the one most important thing that you need to work on if any one of you really wants to stay happy long lastingly. It's extremely, essentially vital. Wow. Yeah. So be with people who probably give you that happiness. वो कहते हैं ना कि एक खुलापन आपको पता चल जाता है, जहाँ पे आपको शायद खुशी नहीं मिलती या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट या कुछ ऐसे, तो आप ऐसे हो जाते हैं। The moment you feel yourself, you are open. Your whole body language says that yes, I'm confident about myself. So be with people who encourage you, who help you motivate yourself. You know, यही नहीं कि बाहर से मोटिवेशन आए, पर तुम्हें वो एनवायरनमेंट दे, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस दे कि तुम अपने आप को हमेशा एक मोटिवेशन और अपने आप को एक ये फील करें कि मैं हूँ। And be with people who let you unleash the real you.
You don't have to wear any mask. Whatever you're doing is you are good for them. It's simple. Being real you with two bunch of people is absolutely okay. That's too much happiness. Totally. Right. So realizing this, realizing to बाद में, identifying what truly you are, um, you have the right to happiness. You have now believed that you have made your beliefs, so you understand those beliefs, the circumstances, the habits you have inculcated in yourself. You have made the habits which are now with you, your habits, what you are now become जिसके तुम गुलाम हो गए हो उन आदतों के, या तुम habit of being happy, and adapt yourself and reclaiming your happiness. And just stay positive. Think positive every day. Don't wait for a dreadary thought to come and tell you that you need to be positive today. Make that a habit. Make that a lifestyle. Like you drink water, drink one dose of happiness and positivity of your own self. और कई लोग तो उसी में हैप्पी होते हैं कि हम सैड हैं, क्योंकि उनकी हैबिट बन जाती है. और ये tricky question है. But that is true, दीपिका, क्योंकि वो उनके लिए शायद उनको पता ही नहीं है कि बाउंड्रीज क्या हैं अपनी या दूसरों की, या वो इतना ज़्यादा अपने में हो जाते हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, या इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि कोई भी कुछ कर सकता है और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, कि वो उनको आप उन्हीं से छीन लेते हो तो भी ये होता है. तो वो एक चीज़ जहाँ पे एक हैबिट बन जाती है उदासीनता की, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो वहाँ पे वो क्या चीज़ है जो आप यू शुड आस्क हेल्प, और व्हाट एल्स? You should ask help. You should identify the triggers. You should first identify the triggers, then identify the people, then understand, is it self-reliance or a dependency? Yeah. What is heavier? If you are more dependent on people for happiness, then you need to move more towards self-reliance, right? So that's how you start working on it, and then you ask for help. If you feel that this is what I need, then think who can actually bring you up to that need. So it's like pain is inevitable, but suffering is a choice. Right. Similarly, happiness becomes your choice. Yes, and if you feel that you have the right to be happy, if you feel that you have the right to be happy, your right will never be ceased off. It's only when you feel that happiness is not a right, it is a habit, or it's just something that it's an emotion, then you feel it's coming and going. But once you make it a right, you make it a habit, and you make it a lifestyle, it will never go. And everyday training, with mindfulness, with meditation, that you bring it together, you visualize yourself, you exercise those things, because कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, but it's not that कि आप उस चीज़ से हट रहे हैं या कोई और इमोशन नहीं आ रहा. It is how soon you come back to your balance and your core, of being yourself. That's what is so much important. Yes, definitely. So like all things, happiness also becomes the free will choice. Sure. Yeah. Great. Wow. So this is what happiness is, and let's pledge that we recognize, we identify ourselves, we have right to happiness, and we reclaim our happiness. Right? So with our transformations, ready to adapt, ready to do so much, and open and create boundaries and respect others' boundaries. And I think that's good enough. Right? Yes. Amazing. Thank you, Deepika. And this is good talk. I liked it. Thank you, Vibha, for having this great idea of talking about an emotion series and inviting me for this beautiful channel, and your great work that you've been doing with this channel is actually amazing. I've just gone through all the videos with so many more knowledgeable and insightful people. I fall in love with all the other videos. Yeah, but I'm not leaving you. We are coming up with more Yes. different kinds of thoughts and belief systems, and what we feel that we both feel strong about, right? Yes. So please feel free to contact us,
and subscribe us and like us and write your comments. So whatever. And watch out for our next series very soon. Yes. Thank you. Thank you for being with us. Thank you. And Thank thank you, you. Deepika.